परं तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यम् लोके भक्तिप्रसिद्धं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीद पारे यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रे शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतुः मुदा यस्य नो भूतिहेतुः। ओम हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी, अच्छा चैंटिंग के लिए। अब हम स्वामी जी के बारे में कुछ कहेंगे। स्वामी जी के बारे में हम क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम बहुत छोटे हैं स्वामी जी के बारे में कुछ भी कहना। फिर भी आप लोग के नॉलेज के लिए संक्षिप्त में जो हमें पता है हम आपके सामने रखते हैं। हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी एक बहुत बड़े अच्छा खानदान को बिलोंग करते हैं हांगकांग में। फिर भी अर्ली एज में सब कुछ छोड़ के उन्होंने ये पाथ, ये रास्ता चुना है कि जन कल्याण के लिए। स्वामी जी पहले रीजनल हेड थे चिन्मय मिशन ऑस्ट्रेलिया, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, फार ईस्ट, एंड अब चांसलर ऑफ चिन्मया Vishwa Vidyapeeth Trust, University of Sanskrit and Indic Traditions, and chairman of Chinmay International Residential Schools in Coimbatore, South India. Swamiji has been now bestowed by Swami Tejomayananda ji the privilege also to serve as head of Chinmay Mission. Very few men are called to serve the humanity the way Swami Swarbananda ji does. Fewer actually achieve the unique impact and response that Swamiji has. In little over a decade, Swamiji has traversed the globe several times, touching the lives of thousands of eager listeners in cities as diverse as London, New York, Sydney, New Delhi, Singapore, Dubai, and Lagos. A disciple of world-renowned master of Vedanta and champion of India's spiritual wisdom, Swami Chinmayananda, Swami Swarupananda left his family and to seek what he now calls it real answers to real problems. He was convinced that beyond our everyday superficial joys and sorrows, there was something more, something higher. After undergoing intensive monastic training and exhaustive study of the scriptures at the Chinmay Mission headquarters in Bombay, Swamiji returned to Hong Kong in 1986 to spread the timeless message of Vedanta. His name then was Brahmachari Sushil. Under the guidance and inspiration of Swami Chinmayananda and Swami Tejomayananda ji, he would later become the Acharya in charge of the Far East and other centers throughout the world. Throughout his speaking career, Swami Swarbananda ji
has held his audiences, adults, youth, and children alike, spellbound by his amazing practical and extremely user-friendly approach to spirituality. He reminds us that there is a greater and more compelling truth that provides the solutions to our problems, enabling us to live a truly happy and positive life. Since 1995, Swamiji was based at the Chinmaya Dham in Melbourne, where he continues to reach out to spiritual seekers by translating Vedanta into a most effective and relevant way of life for the modern man and women. He is the regional head of Chinmaya Mission, UK, Australia, and the Far East. He is the director of Chinmay International Residence School in Coimbatore, India, and presently based there. तो ये था हमारे स्वामी जी के संक्षिप्त परिचय। स्वामी जी अगर कुछ भूल हुई होगी कृपा करके क्षमा करें, जितना हमें पता था उतना कह दिया। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पूज्य स्वामी माधवानंद जी, जो कि हमारी प्रोग्राम के आचार्य है। स्वामी जी आप मंच को टेक ओवर करें। स्वामी माधवानंद जी। परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि आज से श्रीमद् भागवत 12 स्कंद आज से आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वचन से प्रारंभ हो रहा है। जहां संत और महात्माओं के आशीर्वाद होता है, जरूर ये कार्य समापन होगा। हम लोगों ने ये तय किया 1 साल तक, जब तक समापन होगा। ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। स्वामी जी, मैं बेहद आपके लिए कृतज्ञता और चीर नमस्य कृतज्ञ रहूंगा कि आपने मेरी बातों से तुरंत राजी हो गए। और स्वामी जी प्रणाम। मैं अभी चाहता हूं कि आप आशीर्वचन दें। हरिओम स्वामी जी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। प्रथम सब भागवतों के चरणों में मेरा नमस्कार। श्रीमद् भागवत पुराण यह श्री वेद व्यास का जो अंतिम और उनके जीवन का सबसे महत्व कार्य जिससे पूरा हुआ वो है श्रीमद् भागवतम। भागवत का जो अर्थ है वो ये है कि जो भगवान का है, जो भगवान से संबंध है जिनका, तो भागवत कथा यानी भगवान की कथा। परंतु जो भगवान के हैं, उनके भक्त, यह कथा उनकी भी है। और कहा गया है भगवत कथा यानी भगवान की कथा से बड़ी है भगवान के भक्तों की कथा, भागवत कथा। श्री हनुमान चालीसा में भी आप पढ़ते होंगे, तुम्हारे भजन राम को भावे, और उसका दूसरा पाठ अर्थ ये है कि तुम्हारे भजन राम को पावे। आपकी कोई प्रशंसा करे, आपको अच्छा तो लगता ही होगा, लेकिन कोई आपके बच्चे की
या पोते पोती की प्रशंसा करे या जिससे आपको अत्यंत प्रेम है, उसकी कोई प्रशंसा करे, आपको तो अधिक भाएगा कि नहीं। तो भगवान को भी अपनी प्रशंसा से, अपनी कथा सुनने से, तो अपने भक्तों की कथा सुनने में बड़ा भगवान को आनंद आता है। तो भागवत कथा में तो भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के नाम, महिमा, इन सब की प्रशंसा है। और भक्तों को कैसे ये जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रदान करता है, सरलता से, वेरी इजीली जिसको कहते हैं, और वो है भागवत कथा श्रवण। और कथा श्रवण में हमारा प्रयत्न तो बस इतना ही है कि मन लगाकर उसको सुनना है। बाकी तो ये जो नटखट, ये जो माखन चोर है, जो चीर हरण करता है, जो चित चोर है, वो जो हमारे श्रवण इंद्रिया यानी कानों की खिड़कियों से, और चोर है ना, वो दरवाजे से नहीं आता, वो तो खिड़की से छुपके से अंदर आता है। और ये जो नटखट चोर जो है ना, और भागवत में इस भगवान के अवतार, या कहो जो अवतारी कृष्ण है, उस नटखट, माखन चोर, चित चोर की लीला का वर्णन है। और ये एक बार, बस एक बार किसी ने उसका नाम ले लिया, एक बार अपने हृदय में उसका दर्शन कर लिया, एक बार उसके बारे में सुना ही, तो वो उसका सब कुछ हर लेंगे, दुख दर्द सब कुछ हर लेंगे। कृष्ण नाम का जो अर्थ है, जो हमारे दुखों को हर लेता है, हमारे दुखों का कारण जो है क्लेश, विकार, राग, द्वेष, अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब जो हम में से दूर कर लेता है, उसको खींच लेता है, कृश कर लेता है, उसको कृष्ण कहते हैं। और जो सबको आकर्षित कर ले, और सबको आकर्षित करने वाला वह आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कृष्ण, जिसके बारे में अगर एक बार भी सुन लो, एक कथा है, लोक कथा में आती है, वो यह है कि एक गोपी का विवाह व्रज में हो रहा था। उसकी माता ने उसे पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें व्रज में तो भेजती हूं, लेकिन अपने धर्म अगर तुम्हें पालन करना है और अपने नाम, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, तो वहां एक ग्वाला है,
ना उसके बारे में कुछ सुनना, गलती से भी कभी उसको देखना नहीं, उसकी बंसी की धुन भी नहीं सुनना। नहीं तो बेटी तू तो गई काम से। वो छोटी सी गोपी घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई, जब उसकी डोली ब्रज में आई कि ऐसी जगह मेरी माँ मुझे क्यों भेज रही है जहां ऐसा लड़का है। जैसे उसकी डोली ब्रज में आई तो इसे एक बहुत सुंदर धुन सुनाई दी। अपनी सखी से पूछती है वो कि ये किसकी धुन है? ये तो बहुत सुंदर धुन है, ये कौन बंसी बजा रहा है? वो गोपी कहती है, उसकी सखी कहती है, ये वही है जिसके बारे में माँ ने कहा था। वो गोपी ने अपना कान बंद कर दिया। अच्छा वो कहीं नजदीक है। कुछ समय के बाद ढोली के पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हे गोपी, हे गोपी, ब्रज में कोई नहीं आता जब तक मैंने उसको नहीं देखा। अब जल्दी से इस पर्दे को दूर कर दो और मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। वो गोपी ने उस ढोली के पर्दे को पकड़कर रखा और कहा, जाओ यहां से जाओ। अपनी सखी से कहती है, इसको कहो यहां से जाओ। और वो बाहर से ग्वाला विनती करता है, अरे एक बार तो अपना चेहरा दिखा दो, एक बार, बस एक बार। वो गोपी डरी हुई से अपने घर में पहुंचती है। सासू से पूछती है, वो ग्वाले को देखा क्या? उसने कहा नहीं। तो कहती है कि अंदर आओ, क्योंकि अगर उस ग्वाले को देख भी लिया तो गई काम से। डरी हुई घर में आई, खिड़की में से आवाज आ रही है, हे गोपी, हे गोपी, जरा खिड़की तो खोल दो। और वो गोपी कह रही है, जाओ यहां से, जाओ यहां से। वो गोपी तो कभी घर से नहीं निकलती थी। जब तक वहां बाढ़ लगी, इंद्र देवता का कोप हुआ, वर्षा हुई, सब भाग गए उसको छोड़कर। उसने सुना कि वो जो ग्वाला है उसने तो गोवर्धन को उठाए रखा है एक छतरी की तरह, और सबकी रक्षा के लिए वो खड़ा है। वो गोपी दौड़ी देखने के लिए, और देखती क्या है कि जिसके बारे में सब उसको डरा रहे थे, वह अकेला ही अपनी छोटी उंगली पे सबकी रक्षा के लिए स्वयं गोवर्धन को उठाए रखा है। उस भीड़ में वो गोपी अपनी आंखों में आंसू लिए पुकारती है कि हे कन्हैया, बस एक बार, हे गोवर्धन गिरधारी, एक बार लो, मैंने तो अपना घूंघट भी उठा लिया, बस एक बार दर्शन दे दो। और कहते हैं कि वो गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए और वही मीरा हो गई, जो महलों को छोड़कर मंदिर मंदिर, तीर्थों में और वन में घूमती रही कि दर्शन दीजो आए। आप सबको मोवा के इस आयोजन से यह लाभ मिल रहा है, और स्वामी माधवानंदा जैसे चिन्मय मिशन के वक्ता से आपको भागवत का श्रवण आनंद का, उसके रस का अवसर मिल रहा है। इस भगवान कृष्ण को
अपने मन में थोड़ी सी जगह दे दो, उसकी कथा सुनने के लिए थोड़ा सा समय दे दो और देखो कैसे वो आकर लूट मार करके आपके सब दुखों को, कष्टों को हर लेता है। इस भागवत कथा की जो महिमा है, जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से भरा हुआ है, और जो भक्ति है वो तुरंत ही हमारे हृदय में आ जाती है, और जहां भक्ति आ गई वहां माया भाग जाती है। इस भागवत कथा को मन लगाकर निरंतर सुनते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। इस दीपावली के अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बड़े आनंद से इस दिवाली के उत्सव को मनाइए, और सबसे बड़ा तो ये है कि आपको इस दिवाली के शुभ अवसर से भागवत कथा का श्रवण लाभ हो रहा है, और आप सबको भगवान का, गुरु का, भगवान के भक्तों का आशीर्वाद आप सब पे, आपके परिवार के ऊपर बना रहे, और आप सबको मेरा प्यार और मेरा नमस्कार। हरिओम। जी स्वामी जी, हरिओम। आपके प्रवचन, आपके आशीर्वाद हमें याद रहेगी। और मैं अभी स्वामी जी आपकी कृपा से, एंड आपने जैसे कहा है कि आज 500 लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, एंड बहुत बाहर के लोग जो उड़िया भाषी नहीं भी, वो आपकी सुनने के लिए ज्वाइन किए हुए हैं। तो इसलिए हमें बहुत बेहद आनंद हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, किसी भी काम प्रारंभ करने से पहले कि अगर मंगलाचरण शुभ मंगल हो, बिगिनिंग अगर अच्छा हो तो एंडिंग भी अच्छा होता है। इसी का सही मंगलाचरण है जो आपकी कृपा, आपके ब्लेसिंग से हमें मिलेगा। और मैं अभी भगवान पंडा को अनुरोध करता हूँ, वो सबको स्वागत करे। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। समस्त श्रोता भाई मानन को, भाई भौणी मानन को स्वागत। हिंदी में बोलना चाहता हूं क्योंकि स्वामी जी हमारे पीछे। हम आज सभी श्रोता को स्वागत करते हैं। स्वामी जी, ये जो श्रोता आज हमारे पास है, हमारे साथ है, इसमें से मेजोरिटी छोटे छोटे गांव से है, उड़ीसा के छोटे छोटे गांव से है, जहां पर आज भी सड़क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारे लिए तो 500 हम दिखाई देता है बोर्ड के ऊपर, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में वो गांव में एक मोबाइल ऑन करते हैं और उसके ऊपर कम से कम 10-12 लोग देखते हैं। ये रियलिटी है, उन्होंने फोन करके हमें बताया है, और रोते हैं कि जब गीता प्रवचन हमारा हो रहा था, श्रीमद् भागवत गीता, वो लोग रो रहे थे कि भाई हमें सोचा नहीं था कि हम कभी गीता सुन पाएंगे। आज हम प्रत्यक्ष स्वामी जी के मुंह से हम सुन रहे हैं भगवत गीता, वो भी कंप्लीट भगवत गीता। और जब हमने ये डिक्लेयर किया कि हम ये भी स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, वो लोग तो और खुशी हो गए। बीच में कुछ हमारे टेक्निकल इशू थे, हम सोचा था करे ना करे, तो इतने सारे फोन आए, ज्यादा करके फोन आया गांव से कि भाई प्लीज बंद मत करिए, कुछ भी करिए, हमें वो जो प्रसाद मिल रहा है वो प्रसाद से वंचित ना करे। तो ये उनकी इच्छा थी, उनकी श्रद्धा थी। इसलिए हम स्वामी जी को रिक्वेस्ट किए, गजपति महाराज को रिक्वेस्ट किए। कल गजपति आए थे हमारे श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण कार्यक्रम में, इसलिए आज हम स्टार्ट किए। तो अभी हमारे अभाग्य कि आप आज पधारे हैं। आप जैसे महान व्यक्तित्व को पाया
बहुत दुर्लभ है। आपका आशीर्वाद सबको आज मिले। तो भाई बहनों, सबको आज सूचना देते हैं, ये प्रोग्राम कम से कम 1 साल तक चलेगा। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स कैसा हमारा फ्लो जा रहा है, क्योंकि सभी श्लोक का हम कवर करने वाले हैं। जैसा भगवत गीता में हमने कहा था, प्रत्येक श्लोक को हम उड़िया में करते हैं, हम उड़िया में बोलेंगे, आप उड़िया में सुनेंगे। ये उड़िया भाषा में हम वही तय किया है हमने। और खाली इंडिया नहीं, इंडिया एब्रॉड से काफी सारे सिटी से रोज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, बोस्टन, सऊदी, आयरलैंड, घाना, यूके, बहुत सारे सिटी से, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग ऐसा बने रहिए, जैसा आपने साथ दिया भगवत गीता के टाइम पे, ये महापुराण के साथ भी आपने वही साथ दीजिए। आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं सबको कहिएगा। और हमारा YouTube है, जो हमारा YouTube लिंक आपको हमने पहले शेयर किया था, वही YouTube है। YouTube पे हम इसको फिर प्रसारित करेंगे। जो देख नहीं सकते हैं वो लोग घर में बैठ के YouTube भी देख सकते हैं पूरे दिन, कभी भी। थोड़ा 2-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन जरूर हम YouTube में इसको प्रसारित करेंगे। तो ये हमारा जो अनुष्ठान है, महाराष्ट्र ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन, शॉर्ट में हम कहते हैं मोआ, ये श्री जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की तरफ से मोआ, ये आध्यात्मिक उपनिषद, पुराण, ये हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ ले आएगी। आज से और भी एक छोटा कार्यक्रम है जो आपको मैंने कहा था, स्वामी जी को भी हम कहे कि आज से स्वामी जी 10 दिन तक नारद भक्ति सूत्र, ये भी 10 दिन के लिए शाम को रहेगा। ये 7:15 PM 7:15 शाम को 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। ये 10 दिन तक रहेगा, क्योंकि 82 श्लोका से ये शाम को और एक प्रवचक है, वो कहने वाले नारद भक्ति सूत्र। ये भी कुछ श्रोताओं के इच्छा थी, रिक्वेस्ट थी, इसके लिए वो भी हमने शुरू किया। और मोआ की तरफ से हम हर रविवार को शाम को श्री जगन्नाथ कथामृत तो हम करते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के कोई एक टॉपिक लेके हम सब श्रोताओं के सामने रखते हैं। उनका बहुत सारे प्रश्न होता है, उसका रिप्लाई देने को हम, हमारे जो प्रवचक आते हैं, जो स्कॉलर्स, गवेषक लोग हैं, वो लोग उनका रिप्लाई देते हैं। ये मोआ का कंटिन्यूअस प्रयास रहेगी। बस आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा है। गजपति महाराजा के आशीर्वाद चाहिए, स्वामी जी के आशीर्वाद चाहिए। हम सबके आशीर्वाद लेकर ये प्रोग्राम करते हैं। और जब जब हमारी कुछ असुविधा होती है, तकलीफ होती है, हम आपके पास आते हैं हमारा सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो आप लोग हमें हमेशा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आप ही हमें राह देने वाले हैं। आप जैसे साधु, आप जैसे महात्मा आज ये दुनिया को, आज ये दलदल में है, इसको आप ऊपर ले सकते हैं। आपकी गाइडेंस ये बहुत बहुत वैल्यूबल है, महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, ये हमारा छोटा सा सूचना था मेरे श्रोता भाई बहनों के। और 2 स्टाफ है, जो 2 स्टाफ हमारे ये प्रोग्राम के लिए काफी मेहनत किए हैं, श्रीमद् भागवत गीता। एक है हमारे गौरी गणेश, जो कि डेली स्वामी जी के साथ में संस्कृत में चैंटिंग करती रही। वो नॉन ओडिया है और रहती है चेन्नई में, फिर भी सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे डेली हमारे साथ थी। गौरी गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एवं सुष्मिता दास, जो कि IT एक्सपर्ट है, वो कंप्लीटली हमारा टेक्निकल सपोर्ट को हैंडल किया था। आज से वो रहेगी, लेकिन फुल टाइम के लिए हमने दूसरे स्टाफ को लिया, कुछ उसकी प्रॉब्लम के लिए। फिर भी सुष्मिता, थैंक यू वेरी मच, जो आपने मदद किया है हमारा प्रोग्राम के लिए, जो भी टेक्निकल सपोर्ट आपने दिया है, बहुत 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 धन्यवाद। तो आज से ये जो प्रोग्राम है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका मोआ द्वारा संचालित रहेगा। प्रतिदिन एवरीडे सुबह 6:45 बजे 6:45 से लेके 7:45 तक ये डेली रहेगा। आप सुनते रहिए, एक दिन भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मिस करेंगे आप ही लाभ से वंचित होंगे। सेकेंडली, आज हम देख रहे हैं 500 लोग हमारे साथ है, लेकिन बहुत सारे वेटिंग में है। आपको हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया परसों 1000 करने के लिए। कुछ नई रूल्स आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन लोग 500 के ऊपर अगर एक्सेप्ट करना है तो उनको 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। वो हमें पता नहीं था, तो हमने पैसा पहले भरा, लेकिन वो पैसा एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जाता था पहले रिटर्न करते थे, 3 बार हो गया ऐसा रिटर्न किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हमको 500 में रहना पड़ा। हम 1000 कर नहीं पाए, बहुत दुख लगता है।
क्योंकि ये पैसे का प्रॉब्लम नहीं, हम तो करना चाहते थे लेकिन आरबीआई के रूल हमें परमिट नहीं किया है, तो इसीलिए हम नहीं किए। लेकिन आपको वादा करता हूं, अगर आप लोग फोन करके अगर इंटरेस्ट आप दिखाएंगे कि नहीं हम 600-700 आएंगे, वादा करता हूं हम अप्लाई करेंगे, फिर 1000 हम ले लेंगे, क्योंकि 1 साल तक चलेगा। ये हमारा वादा है, मुआ का वादा है आपके साथ। हम 500 में नहीं इसको बढ़ाएंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो तब, क्योंकि और 500 ऐड करने के लिए पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चा करने के लिए हम तैयार है, बट आपका इंटरेस्ट अगर हो हम उसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम ये 500 में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सूचना आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को, सब लोग इतना सुबह आए। और फिर से स्वामी जी प्रणाम, बहुत 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 धन्यवाद। आपकी आशीष, आपके आशीर्वाद सबके लिए है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। स्वामी जी जय श्री जगन्नाथ। करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूज्य स्वामी जी जमते कहले कि श्रीमद भागवतर जो महात्म्य वो सबुठरे गान करा जायछि। उपनिषद मध्य रही छांदोग्य उपनिषद गोटे प्रसिद्ध मंत्र रही, कारण भागवत आसे इतिहास एवं पुराण अंतर्गत आसे। छांदोग्य उपनिषद गोटे मंत्र रही, अस्य महतो भूतस्य निश्वेषितम् एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणरेशः इतिहास पुराणम। इतिहास पुराण विषय रे और इतिहास पुराण को पंचम वेद कहागला। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदः, पंचम वेद कहागला। एवं इतिहास पुराण रो प्रयोजन कौन? भगवान वेद व्यास जमते स्वामी जी कहले वेद व्यासंकर अंतिम कृति, एवं पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते कि दिस इज हिज लास्ट मास्टरपीस, एंड मास्टरपीस, लास्ट मास्टरपीस, आफ्टर दैट he threw his pen to Ganges। कारण बद्रीनाथ रे लिखले, एण बद्रीनाथ रे साम्य प्रास आश्रम रे लिखला पोरे से छाड़ देले, अर्थात मास्टरपीस, एंड इट इज ए पीस बाय मास्टर। आमे सेटा कोन करछु, पीसेस कर दउ चिंतु। रियली ए पीस मास्टरपीस ही अम्मन को पीस दव, शांति दव। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेद संबृहते, अर्थात इतिहास पुराण माध्यम रे वेदर जो तात्विक रहस्य, वेदर जो तात्विक अर्थ को प्रकट कराते। मु कौन से प्रसंग रे कहितिबी, वर्तमान इतिहास पुराण बा भागवत पुराण रो स्थानटा केते सुंदर। एपरि कौन से ग्रंथ नाइ, केवल दुईटी ग्रंथ अछि, श्रीमद् भगवत गीता एवं पुराण हमर भागवत महापुराण विषय अन्य पुराण रे प्रशंसा करा। श्रीमद् भगवत गीता काली सरीला, सेठी हमें महात्मा देखिले पद्म पुराण रे, एवं भागवत रे स्टार्टिंग रे पद्म पुराण रो महात्म्य एवं शेष रे स्कंद पुराण रो महात्म्य। एठो जना पड़छि भागवत रो महत्व कोन, एठो जना पड़छि भागवत रो स्थान कोन। तो बर्तमान भागवत रो स्थान जानिबा पई हम माने टिके देखि दवा, जानि दवा कि यार वेद सहित यार कोन संबंध अछि, और ये वेद रो अनुकूल ग्रंथ कि प्रतिकूल ग्रंथ। बहुत लोग कहते ये भागवत पर हेतला एवं एई मसिया रे ना, भागवत रो महात्म्य एते सुंदर ताको अब टिके जानि दवा। मोटे शॉर्ट गोटे टाइम टेबल हिसाब रे आपन को गोटे ग्राफिकली कहि दउचे। गोटे होची वेद होची चारोटी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो चारोटी वेद, तापरे वेदांग अछि। ये वेद को बुझीबा पई एक्सिलरी ग्रंथ, जोटा कि हमें सहायक ग्रंथ, शास्त्रीय पारिभाषिक ग्रंथ द्वारा हमें बुझीबा। वेदांग होती 6 कौन? शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, ये होची वेदांग। तापरे उपवेद अछि। जमती वेद चारोटी प्रसिद्ध समस्त जानिछन्ति, सेमती उपवेद अछि। अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं अर्थशास्त्र। ये हला कोटि कोटि अर्थशास्त्र बदल रे स्थापत्य कला जो आर्किटेक्चर सेटा मध्ये कह जाय छी। ये हेगला 2टा उपवेद।
तापरे दर्शन अछि 6टा दर्शन एवं आस्तिक दर्शन एवं 6टा नास्तिक दर्शन न्याय शास्त्र वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ये होचे आस्तिक दर्शन एवं 6टा नास्तिक दर्शन चार्वाक दर्शन जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन चारिटा होची क्षणिक विज्ञानवाद शून्यवाद योगाचार एवं स्वातंत्रिक ये होचे नास्तिक नास्तिक अर्थ तीनोटी अर्थ थाए गोटे होचे नास्तिक भगवान को जे स्वीकार करे नाही आ गोटे होची धर्म को जे स्वीकार करे नाही आ गोटे होची वेद को जे स्वीकार करे नाही ए दर्शन रो परिभाषा रे दर्शन संदर्भ रे दर्शन परिप्रेक्ष्य रे दर्शन रो प्रसंग रे वेद निंदक नास्तिक वेद को जे निंदा करे वेद को जे स्वीकार करे नहीं तांको नास्तिक कहा जायछि ए जो 6टी नास्तिक दर्शन माने चार्वाक दर्शन जैन दर्शन बौद्ध धर्म दर्शन चारोटी एमाने वेद को स्वीकार करूना वेदर जो कर्मकांड बहुलता रही से भावुचन कि ये हिंसा रही एणु से स्वीकार करना से दृष्टि किंतु परिप्रेक्ष्य रे प्रसंग अनुसार नास्तिक अर्थात जे ईश्वर को विश्वास करे ताहा मध्य हुए तापर आसंतु उपांग ये गोटे नुआ जिनस प्राय लोक आम माने प्राय शुणु जिते आम शास्त्र भितर प्रवेश करवा तेबे ही आम मान को ये नॉलेज मिले वेद जानी समस्ते उपवेद भी प्राय बहुत जानी वेदांग बहुत कम लोग जानुंट दर्शन जी ग्रहण कर प्रवेश कर से जाने उपांगटा जानते उपांग होची न्याय मीमांसा एवं इतिहास पुराण धर्मशास्त्र उपांग मतलब 4 गोटा होची न्याय नंबर 1 नंबर 2 मीमांसा माने ये दर्शन रो उपांग रे तांकर स्थान मध्ये रही छे एवं इतिहास पुराण ये गोटिए इतिहास एवं पुराण अलग अलग इतिहास पुराण गोटिए तापर धर्मशास्त्र हमर पूज्य गुरुजी एबे बड़ा 12 दिन रे धर्मशास्त्र ऊपर प्रवचन दोथले बहुत लोग सुनिथिबे यूट्यूब रे मध्ये अछि आपण सुनंतु मु पूरा टोटल 12टा सुनुथिले मु नोट मध्ये पढछि धर्म रो लक्षण कोन एवं साधारण धर्म एवं विशेष धर्म बहुत सुंदर रे पूज्य गुरुजी स्वामी तेजवान जी दोथले आपण यूट्यूब रे वर्तमान मध्ये एबे आपण ऑन करके सुनि परिबे चिन्मय चैनल रे तो एण वर्तमान आसंतु इतिहास पुराण अर्थात गोटे टोटल आई व्यू बार्ड्स आई व्यू माध्यम रे वेद कोन वेदांग कोन एवं उपवेद कोन दर्शन कोन एवं उपांग रे अर्थात आमर सनातन धर्मर ए वैदिक शास्त्र भितरे एते सब शास्त्र रही जमती गोटे साइंस कहला माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स आर्ट सब्जेक्ट कहला माने कॉमर्स कहला माने माने अकाउंटेंसी देन बिजनेस स्टडीज कॉस्टिंग कॉमर्स आदि सब रहुची तो सेमिति एठी कहउचंती ये जो इतिहास पुराण ये वेद पुराण वैदिक साहित्य अंतर्गत बर्तन प्रश्न होची इतिहास का कहते पुराण का मन रखते हैं रामायण एवं महाभारत ये दुटा को इतिहास कहते एमती तो आम माने इतिहास पढ़ुचे इतिहास इतिहास इंग्लिश रे कहते हिस्टरी पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर कहते एच टाक बड़ कर दियो HIS हिज स्टोरी इतिहास रे मध्य से हिज स्टोरी जंत रामायण इतिहास महाभारत इतिहास हिज स्टोरी रहुची अर्थात इतिहास इतिहास प्रत्येक शब्द गोटे व्युत्पत्ति थी प्रत्येक जो नाम अच्छे ना व्युत्पत्ति रही तेणु इतिहास इति माने जोटा हो जाइए आमर संस्कृत वाङ्मय वाणी रे जेतोले लास्ट लिख इति इति श्रीमद् भगवत गीतासु तमने इति माने सरला फुल स्टॉप पूर्ण छेद इति अर्थात अतीत रे जो घटना हो जाइए इति ख आस भल भाव जो वर्णन करा जाइए ता होची इतिहास तो रामायण रे भगवान श्री राम वर्णन राम विग्रहवान धर्म भगवान श्री राम वर्णन और इति महाभारत रे संपूर्ण घटना कृष्ण समय रे एवं जो पुरुवंश चंद्रवंश आदि संपूर्ण घटना महाभारत युद्ध सहित एवं जो पर्व आदि माध्यम वर्णन रही जो कि भीष्म पर्वर
अंतर्गत रे श्रीमद भगवत गीता अछि एणु महाभारत अलग एवं भागवत भागवत होछि पुराण रा आसे तो इतिहास गला पुराण पुराण रो पांचटी माने लक्षण अछि एवं महापुराण रो 10टी लक्षण अछि वर्तमान आमे धीरे धीरे देखिया मु आज आपन को ब्रॉड आई व्यू केवल दे दोचे एवं पुराण होछि 18टी उपपुराण मध्ये 18टी सब वेद व्यास लिखछ वेद व्यास होचंदी कला अवतार वेद व्यास होचंदी कला अवतार सुखदेव होचंदी प्रेम अवतार एवं हमर नारद होचंदी मानस अवतार कारण भगवान को ब्रह्मांडर मनर उत्पन्न होचंदी मानस अवतार तो भगवान वेद व्यास जे कला अवतार जे अपांतरतमा महाभारत तांकर ना अछि अपांतरतमा सेही वेद व्यास भागवत लिखिबा पूर्वरु अनेक पुराण लिखछन मु जस्ट गोटे लिस्ट कर दोछि आपन को पुराण होछि मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण भागवत पुराण जोटा के मु कहिली भविष्य पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण विष्णु पुराण वराह पुराण वामन पुराण शिव पुराण स्कंद पुराण नारद पुराण गरुड़ पुराण पद्म पुराण कूर्म पुराण एवं लिंग पुराण अग्नि पुराण 18टी है शिव पुराण प्रसिद्ध अछि बर्तमान आमे स्कंद पुराण अंतर्गत जगन्नाथ महात्मा अनेक थर प्रवचन ई मोआ तरफरु अन्य तरफरु आमे देखिछंती है ना एवं ए जा बाकी जो पुराण ये सब 17टा पुराण मात्र पुराण एवं ये होची 18 नंबर माने को भागवत कहवा महापुराण बाकी टार केवल 5टा लक्षण एवं एटार होची 18 माने 10टा लक्षण ये होची सेते महात्मा ए कौन 10टा लक्षण मु आपन मान कहिबी एवं भागवत रे 12टी स्कंद रही भागवत रे 12टी स्कंद आ जेमते पूज्य स्वामी जी भी कहले भागवत रे ज्ञान पारमहंस संहिता उपनिषद निर्यास उपनिषद सार एवं वैराग्य वर्णन एवं भक्तिर तो उच्च जेमते सुंदर कृष्ण कथा स्वामी जी बहुत बढ़िया रे कहते कि जदि एटा लोक कथा किंतु एते सुंदर कारण आम मन को शास्त्र वर्णन अछि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण 15 अध्याय में देखिथिले लोक माने लोक मतरे एवं वेद मतरे किए से होचंदी सेही निर्गुण निराकार परमात्मा से होचंदी सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम ये होची वेद मत वेद से ही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण निराकार है क्या आसिचंती एवं लोक मतरे ए लोक मतरे जेमति सुंदर कथाटे कहले कारण भगवानंकर रूप एमिति भगवानंकर लीला एमिति भगवानंकर नाम एमिति भगवानंकर धाम एमिति थरे जदि किए उत्तम अधिकारी काली पूज्य गजपति महाराज कहते आमर अंतकरण शुद्ध हलानी आमर कोन अधिकारी आमे हलानी आ आमे जेतिकी ग्रहण करि परिबा सेतिकी ही साधना करि परिबा आमर ग्रहण ऊपर साधना निर्भर तो ठीक सेमती आम जदि अंतकरण शुद्ध थिवो जदि पात्रता उल्टा थिवो आ गुरु बा जी भगवान भी आसले कहले भी होबो नै चाणक्य गोटे सुंदर कहिसंदी जने अलसुआ व्यक्ति जदि विष्णु भी आसंती ताहाले मध्ये से काम दब नाही काहे के ना ता भीतर अलसुआ रहिछि एते सुंदर कहउचंदी कि किछि लाभवानी भगवान विष्णु मध्ये आसीबे आ विष्णु को सहित लक्ष्मी मध्ये आसीबे ताहाले सेही निरुद्यमेन किम सिद्ध्यति निरुद्यमे व्यक्ति किछि ले प्राप्त करि पारे नाही तो एणु ई जो भागवत रो जो महात्म्य सुंदर रहिछि आमे देखिवा आर 10टे लक्षण कोन खुद द्वितीय स्कंद रहिछि एवं ये भागवत रो श्रीधर स्वामी टीका लिखिते आज मु केवल आ 10 मिनिट रे भागवत रो महात्म्य आदि कहूछि तापर आज आमे प्रथम दिन रो गोटा आरती करिया मु भगवान पंडा कहबी जे हमर जे जने भक्त तांकर बर्थडे रो विषय रे से कहि दे कि देन आमे जीवा तेणु भागवत रो सुंदर वर्णन रही कि श्रीधर स्वामी टीका जमते आम श्रीमद भगवद गीता रे
प्रथम भाष्यकार होचन शंकराचार्य। मु मझिरे मझिरे आपनको शंकराचार्य भाष्यर पढ़ौथली ओरिजिनल एवं अनेक भक्त मध्य किणिकी रखिछन्ति एवं एई माध्यम रे पढ़ंती मध्य। तापरे रामानुजाचार्य माधवाचार्य आदि अनेक आचार्य से होची भाष्य। ता ऊपर टीका हला, तापरे एला माने व्याख्या हला। जेमते हमर पूज्य गुरुदेव स्वामी गुरुदेवंकर सुंदर होली गीता रही ओडिया रे मध्य रही। मु जेमते कहितले आपण ओडिसा सेंटर को जानतो एवं आम चिन्ह मिशन नियम है श्रीमद भगवत गीता को सेल करा एमती दिया जीव। आपण जहाँ डोनेशन देवा कथा देवे। मत के जन कहते भुवनेश्वर जाइए सी आणवे सेमती आपण श्रीमद भगवत गीतार जमते अनेक व्याख्या रही सेमती भागवतर टीका श्रीधर स्वामी विल कहते से बड़ा सुंदर कही भागवत परीक्षा कौन हुए। भागवत एटा हमर पूज्य गुरुजी भागवत प्रवचन देथिले सप्ताह रे बॉम्बे रे। तापे गोटे सुंदर बहीटी भी अच्छी। ये बहीटा मो पाखर अच्छी मु आपन देखौ छी। देखन केते सुंदर एटा बंधे आपन किनि दियंत। एटा हिंदी रे अछि भागवत प्रवचन ए पूज्य गुरुजींकर। एटा गुरुजींकर पछपटे फोटो भी अछि। एई ये रे भलो देखा जाउनी। सेठी बड़ा सुंदर इंट्रोडक्शन रे गुरुजी कहउछन। गुरुजी माने स्वामी तेजमानंद जी हम मानकर समस्तंकर प्रिय गुरुजी। तो जोटा कि अबे भगवान पंडा कहते गुरुजी स्वामी तेजमान जी स्वरूपानंद जी को हेड करेले। तो से गुरुजी लिखिछन्ते से सुंदर श्रीधर स्वामी जो श्लोकटी भागवत विषय रे सेटा लिखिछन। कोन धनंजय हाटके परीक्षा। मूल श्लोकटा हम पढ़ दूची। धनंजय हाटक परीक्षा महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। मु स्टार्टिंग टा नहीं जाउचे आग विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। अर्थात कौन सी झील जतले बाहा हुए जेंदे स्वामी जी कहानी टी कहउथले जतले घरे देखो मां को पाकर रहंते मान गेलालिया हेतिबे अलीली हेतिबे रही जतले से बाहा हेके जिवे सेतले रेस्पोंसिबल नेबो पड़े। पुओ हेले ये हेले सासुंग सेवा सेही समय रे झीवर गृहिणीर परीक्षा। घरे तो रहीटा इजी जेतले पुओ हेबे गर्भ हबो तापर पिलान को पाठ पढेबे ये करिवे ए जेमते आपण माने अनेक गां गले से कहउतले भगवान पंडा कि जेतले गोटिए जॉइंट फैमिली एबे धीरे धीरे हमर कटलाने रही कि जेतले से माने से मां मानु को हम प्रणाम करिया पड़े केते तांकर त्याग। तो सेमिति जणे स्त्री रो जणे गृहिणी रो जणे झियर परीक्षा तेबे हबो जेबे आमे जानी पारिबा कोठी ना सीए भलो भावे केमिति ग्रहण करछि केमिति संसार चलुछि समस्त केमिति खुशी करछि। माने जदि पुओटीए बैगण खाउनी आलू खाउनी सेटा देबे पति आ खाउना सेरा देबे किए रोटी खा भात खाउना आ देबे सी होचे गृहिणीर परीक्षा पास। केते सुंदर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल होची धनंजय हाटक परीक्षा। एटा आज्ञा दीटा अर्थ होची। धनंजय हाटक परीक्षा माने हाटक रो अर्थ होची गोटिए माने गोटिए होची धनंजय हाटक परीक्षा गोटे होची सोना आ गोटे अग्नि। हाटक माने सोना धनंजय माने अग्नि। अग्नि रे सोनार ही परीक्षा अर्थात सोनार जो कसौटी सोना 24 कैरेट अच्छी के नहीं सोना 100% अच्छी के नहीं सोना प्योर अच्छी के नहीं अग्नि रे जतले दिया जियो तार उज्जवल देव द्योतते समम आत्मबोध रे पूछ। तेणु सोनार परीक्षा अग्नि रे आको आ गोटे सुंदर अर्थ लक्ष्य पूछ। कौन धनंजय माने धन उत्पादन बिजनेस। धनंजय माने बिजनेस हाट रे ही परीक्षा हो। कारण एबे जेमती दुकान रहिबे इट इज वेरी कवर्ड लोक भी दूर रहिबे आज्ञा ई जेमती मेडिसिन स्टोर तो सब ग्रिल थियो दूर थियो काच पड़ी थियो से लेखिबे आपण देबे केई उठै परिबे। आ आजिकल सीसीटीवी भी रहउछि बहुत भारतीय लोक जाउछन ना अमेरिका आदि सब सीसीटीवी भाउछन को केई ना धरा पड़ी जाउछन तो सीसीटीवी तो एटा रे किछ असुविधा नै तांगर बिजनेस हबो। किंतु हाट रे जो मानते गां गल रे जानि थियो हाट रे बहुत भीड़ थियो
एवं जे गंजी बिकुची बा कपड़ा बिकुची बा परिवा बिकुची सेटा देखिए बहुत भीड़ माड़ी आइथिबे सेठु कि जणे नै जीव भी जानी हबो सेठी जदी से धन उत्पादन कला ताले हाटरे ही तार परीक्षा हबो ठीक से थर्ड माने इधर दीटा अर्थ गोटे होची विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा गृहिणी परीक्षा जेतेबेले संसार गृहस्थ जीवन रे विपत्ति प्रतिकूल परिस्थिति मध्य से केमती सम्मुखीन होची से केमती से चैलेंजिंग करूची सेकंड एग्जांपल देले धनंजय हाटक परीक्षा दीटा अर्थ हैगला आ गोटे बढ़िया दउचंदी कोन महारणे शस्त्रवृतम परीक्षा जे शस्त्रधारी सोल्जियर तार परीक्षा कारगिल युद्ध रे अर्थात युद्ध रे जिते कारगिल युद्ध है आज्ञा बहुत लोग चिट्ठी नहीं करे कि नहीं नहीं मो शाशुर देह खराब मोर मार देह खराब मो पत्नी देह खराब पलि आसते से वीर नुहति वीर आउ जड़े मागुंट आमको चांस दियो आउ जड़े कहते आम आमको गोटे चांस मिली भारत प्रति आम देश प्रति काम करवा अर्थात शस्त्रभृताम कौन महाराणा परीक्षा तीनटा एग्जांपल पर कहते विद्यावताम भागवते परीक्षा विद्वान मानकर परीक्षा कोठी हुए भागवत रे कारण श्रीधर स्वामी कहते ज्ञान प्राप्त करवा बहुत सहज किंतु ज्ञान सहित भक्ति को मिसई की जो स्वामी जी कहते ये जो कथा ये जो नटकटर कथा कानर दी बेटा भागवत रे लिखाई आज्ञा श्रवण रंध्रेण जाइकी जेमिति हमर नदीटा एवं वर्षा नदीर पानीटा गोलिया थाए एवं शरद कालर पानीटा जेमिति सलील सफाई थाए सेमिति भगवान कृष्णंकर कथा कानरे जेतेले सुनिबे हमर अंतःकरण शुद्ध होई जे देखो पूज्य गजपति महाराज जहाँ काली कही स्वामी जी मते ये कहले कारण जिनसटा सेम साधना विषय रे अर्थात ये आमर भगवान कृष्णंकर कथा अंतःकरण शुद्ध करे दउछि भगवान श्री कृष्णंकर कथा आम मान को पवित्र करे दउछि भगवान श्री कृष्णंकर कथा आम मान को मुक्त दे दउछि एणु ए भगवानंकर कथा आम माने सुनिबा उचित ए भगवानंकर कथा आम माने जानिबा दरकार एवं सी दृष्टि नाम गुण धाम चरित्र तापरे रूप आउरी भगवान कर स्वरूप यही होची भागवत विषय तो भागवत आम शास्त्र वर्णन अच्छी अनुबंध चतुष्टय गोटे होची अधिकारी किए अधिकारी स्कंद ही प्रथम स्कंदटा द्वितीय स्कंद होची साधना स्कंद अधिकारी किए फिर प्रयोजन कौन फिर संबंध कौन तापर फल कौन फल होची कौन निर्वाण मुक्ति भगवान के प्रति अधिकारी किए जमती सौनक अधिकारी परीक्षित होचन श्रेष्ठ अधिकारी सात्विक अधिकारी सी होचन नायक जमती श्रीमद् भगवत गीतार मुख्य नायक किए श्रोता दृष्टि अर्जुन तापर अन्यान्य सब गौण नायक जमती संजय भी शुणिले धृतराष्ट्र भी शुणिले हनुमान जी ऊपर भी शुणिले कि मुख्य होचन अर्जुन से कृष्णार्जुन संवाद सेमती मुख्य होची परीक्षित संवाद सुख परीक्षित संवाद एणु बैकग्राउंड रे डिवोटी कहले उज्जैन को एमिति दियो कि सुख परीक्षित रही देखो वर्तमान सुख परीक्षित अछंती तो सुख परीक्षित संवाद रे प्रयोजन कौन मुक्ति मुक्ति कौन मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थित ही भागवतर द्वितीय स्कंद वर्णन रही कौन ये मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा आम भितरे जो शरीर मु शरीर मैं शरीर हूं यही मानना सबसे बड़ा पाप है और यही पाप सबका बाप है तेणु प्रयोजन मुक्ति फल संबंध कौन प्रतिपाद प्रतिपाद्य का संबंध प्रतिपाद्य को कौन भागवत एवं कौन विषय भगवान ये संबंध ये होसी अनुबंध चतुष्टय फिर भागवत में प्रवेश करिवा 12 स्कंद को केमिति कुआ जाइछे रूपक रे भगवान कृष्ण सहित भागवत संबंध विषय सेटा को काली देखिवा आज समय हे गला पूज्य स्वामी जी अछंती आशीर्वाद दउछंती एवं जने हमर डिभोटी तांकर मांकर आरती आमे करिवा से कहिबे ता पूर्व 2 मिनिट भागवत भगवान पंडा टिके कहि दियंतो तापर मु आरती करैबी भगवान पंडा आज्ञा आज्ञा
से ऑन करंतु पुणी समस्त को स्वागत। आज हमारी शुरुआत हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण। मु आरती करे दिया ना। आज्ञा आज्ञा। हमारे बीच आज एक अनन्य प्रतिभा है जो कि हमारे साथ गीता महायज्ञ में भी शामिल थे। उनकी संक्षिप्त परिचय ऐसा है कि वो एक रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस है पटिया स्कूल में थे भुवनेश्वर। वो एकाधार में एक पोएट भी है, राइटर भी है। उन्होंने 2 किताब लिखी है, अभिलाष और दीपशिखा उड़िया में, जिसको रिलीज किए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिसेस नंदिनी सतपथी। और सबसे बड़ा ये है कि वो एक महापुरुष जगन्नाथ की भक्त है। जगन्नाथ के भजन अच्छा गा लेते हैं, अष्टकम पंचकम वगैरह श्लोका बहुत आसान से वो चैंटिंग भी करते हैं। वो है श्रीमती मनोरमा मिश्रा, फिलहाल बॉम्बे में है। आज वो महाप्रभु के आरती करेंगे। आज हम सीधा उनके मंदिर में जाएंगे और आरती वहां से होगी और आरती आप लोग सब देख सकते हैं। स्वामी जी आरती चैंटिंग करेंगे और मनोरमा जी आरती करेंगे। चलिए, आज पहला दिन है, हम आरती के साथ भागवत स्वागत करते हैं। मंगल आरती प्रिया प्रीतम के, मंगल प्रीति प्रीति दवन के, मंगल कांति दसनि दसनन के, मंगल मुरली पीना धुन के, मंगल आरती। मंगल बने कथे भंगे हरि की, मंगल सेवा सब सहचर की, मंगल सिर चंद्रिका मुकुट के, मंगल छवि नयन में अटके, मंगल आरती। मंगल छटा बबी अंग अंग की, मंगल गौर श्याम रस रंग की, मंगल अति कटि पियरे पट के, मंगल चितवन नागर नट के, मंगल आरती। मंगल शोभा कमल नयन की, मंगल माधुर मृदल बयन की, मंगल वृंदावन मद अटके, मंगल क्रीडन जमुना तट के, मंगल आरती। मंगल चरण अरुण तरुवन की, मंगल करनी भगति हरिजन की, मंगल जुगल प्रिया भावन की, मंगल श्री राधा जीवन की, मंगल आरती। मंगल आरती। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमाद् विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः
परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले कन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।